Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now, and the last week was really good for the market. As market were very oversold, many indices are in the running in the zone of very oversold levels, and there were like very fear in the market. So let's check the market mood index now. Market mood index. So look at this. Currently, market is into very extremely greed zone, which is not good sign. People are again believing that market has reversed now, and you can see the last few days rally from the low rally is all about almost of 5 to 6% in few days in indices. So there is a lot of volatility happening now. Many stocks are running 14, 15%, 20%, hitting upper circuit from the very oversold levels. So there is possibility that people might think that market has made a low and it came back very sharply and it can go up now from here. It can make a new high until in coming few days. So for those people, I want to say that just keep patience. It's not that easy. It's not that easy process that market is reversed so easily, so swiftly. Okay, it will take time, and we should see on all parameters that how market is responding. Like if you know how to use moving averages, you have to use those moving averages on weekly basis, on daily basis to check the fair prices. To see the price action, you have to watch the key pivotal levels of the market. Like here, I have drawn few rectangles. Those are not few rectangles. Those are the pivotal level where Nifty reversed. जैसे देखा जाएगा तो यहाँ पे भी निफ्टी ने एक शार्प रैली दी थी 6% की, फिर उसके बाद फॉल आया। यहाँ पे भी एक शार्प रैली दी थी 5% की कुछ दिनों में, फिर फॉल आया मार्केट में। यहाँ पे भी हमें एक शार्प रैली देखने मिली है। So we always see this kind of sharp rally, sharp pullbacks in the bear market, where structure is lower high, lower low, and ये structure अभी भी बदला नहीं है। If you see this zone is still in intact, यहाँ पे ये जोन के ऊपर निफ्टी को क्लोज करना पड़ेगा, but you can see there is a this black line also. So what kind of black line is this? ये कहाँ से आई है? So for that purpose, I will shift this timeline into weekly. And this black line is a low of a कोविड। यहाँ से मैंने जो फर्स्ट सपोर्ट आया था वो 2 पॉइंट ज्वाइन किए हैं। दिस इज अ ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सिंस 2020। ओके, आई गेस मार्च 2020 ओनली। 23 मार्च को एक लो बना था, 23 मार्च के वीक में जो लो बना था वहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। सो मार्केट हैज विजिटेड दिस ट्रेंड लाइन फ्यू टाइम्स हियर ऑन 2023, here on 2023 October again. Then it visited around here on the election. But all this time, like I explained this in last few videos also, again I am repeating it. All those kind of pullbacks जहाँ पे ट्री टेस्टिंग हुआ था वो कंप्लीट हो गया है एक वीक के अंदर। हार्डली एक दो वीक के अंदर वो अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया था। यहाँ पे भी एक दो वीक के अंदर चला गया था। यहाँ पे तो एक वीक के अंदर क्लोजिंग भी नहीं आई, जस्ट रीटेस्ट करके चला गया बिकॉज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। बट दिस टाइम इट हैज स्पेंड I guess four, again four, more than I guess 2 months now. Nifty spending time below this trend line. सो यहाँ पे अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस तो जैसे कि मैंने पिवटल प्राइवेटल लेवल देखी है। नाउ आई विल ऑन दिस मूविंग एवरेजेस ऑल्सो 30 एंड 40 डे मूविंग एवरेज। जो ट्रेंड लाइन हम मतलब एक काफी पिवटल मूविंग एवरेज है ये 30 और 40 डे मूविंग 40 वीक मूविंग एवरेज। और ये क्रॉस डाउन भी हुआ है विच इज अ बेरिश साइन, जो कभी नहीं हुआ था पहले। लास्ट टाइम हुआ था 2022 में क्रॉस डाउन, उसके बाद मार्केट काफी साइडवेज चला गया था। तो जब ये क्रॉस डाउन होता है दैट इज अ इंडिकेशन दैट मार्केट कैन स्पेंड मोर टाइम साइडवेज इनटू अंडर दिस जोन। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंडर मार्केट चलेगा। तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये अब ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। आई विल जस्ट कीप ऑन दिस मूविंग एवरेज, एंड इफ आई
कैलकुलेट दिस, तो रेजिस्टेंस है निफ्टी का 24,000। तो यहाँ से अभी जो वीकली क्लोज आया है उससे और 3% ऊपर मार्केट जाने के चांसेस है नेक्स्ट पुल बैक के लिए। तो ऐसे मत समझना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। यस, कि मार्केट ने एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल से अच्छा बाउंस दिखा है। दिस वीकली कैंडल इज रियली गुड। एक अच्छी टॉल कैंडल वीकली बनी है, बुलिश कैंडल है, इट्स ऑल गुड, नो डाउट इन टू दैट अगेन। एंड मार्केट अभी भी बेरिश जोन में नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। वीकली बेसिस पे देखा जाएगा तो ये स्विंग लो अभी भी इंटैक्ट है। ये जो स्विंग लो है अभी भी इंटैक्ट है, ये सपोर्ट सी। तो ये जब सपोर्ट के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आता तो बहुत काफी दिक्कत वाली बात होती, बट मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं तोड़ता। इसको नीचे जाना ही है तो मार्केट विल रिएक्ट इन अ सेम वे इट हैज रिएक्टेड प्रीवियसली, मेकिंग लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर। तो अभी भी मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिया है, अगेन इट कैन विजिट एंड देन इट कैन गो डाउन इफ इट हैज टू गो डाउन। अगर यूएस मार्केट के नीचे जाना ही है तो ये स्ट्रक्चर होगा मार्केट का। अगर ये इसको ऊपर की तरफ जाना है तो भी ये टाइम स्पेंड करेगा, इट्स नॉट लाइक ये वर्टिकल चला जाएगा ऊपर, then also it will spend time like this, then ब्रेकआउट आएगा, फिर रिटेस्टिंग आएगा, फिर एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जाके एक नया पोजीशन बनाएगा। सो देर इज ऑलवेज टू पॉसिबिलिटी इन द मार्केट, राइट? ये एक पॉसिबिलिटी है और ये एक पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस बोथ पॉसिबिलिटीज। बट यहाँ से वन वे मार्केट को ऊपर जाना चांसेस कम है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस हियर। ये एक रेजिस्टेंस है जो मूविंग एवरेज से अलाइन हो रहा है, उसके ऊपर और एक ये रेजिस्टेंस है। और ये ऑल टाइम हाई वाले जो लोग हैं यहाँ पे जो मेजर बाइंग हुई थी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये लोग भी निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से, जो उनके कॉस्ट पे निफ्टी अगर आ जाता है तो। सो निफ्टी हैज मेनी रेजिस्टेंस ऑन टेक्निकल बेसिस। और अगर फंडामेंटली में बात किया जाए, फंडामेंटल में, तो वाई एफ आई हैज सोल्ड सो मच मीन्स दे सेंस समथिंग, ओके, दे सेंस समथिंग स्लो डाउनिंग इन इकोनॉमी, दे सेंस दैट। तो वो जो रीजन थे जिस रीजन से वो लोग ने बेचा था, वो रीजंस इतने जल्दी अगर नलीफाई होते हैं तो ही निफ्टी नया हाई बनाएगा। बिकॉज देर वेर नो रीजन कि कुछ बचेगा ही नहीं तो निफ्टी ऑब्वियसली न्यू हाई बनाएगा। बट वो रीजंस इतने जल्दी अगर सॉर्ट आउट होते के होने के चांसेस होते थे तो एफ आई आई सोल्ड सेल करते ही नहीं इतना सारा डेटा, राइट? इफ दे हैव सोल्ड सो मच मीन्स दे हैव स्टडीड समथिंग, दे फोरकास्टिंग समथिंग इन इंडियन इकोनॉमी, सो दैट्स वाई दे सोल्ड सो मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक टाइम ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ठीक होना, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ क्वार्टर्स निफ्टी ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट दे सकता है। सो डोंट पुट योर, द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी इज डोंट पुट एंटायर योर अमाउंट अगेन बाय सीइंग दिस काइंड ऑफ बाउंस। फंस जाओगे फिर से ऊपर के लेवल पे। एंड ये सेल ऑन राइज ही मार्केट है अभी भी। सो ट्राई टू टेक योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली। यस, मैंने भी कुछ स्विंग ट्रेड किए बीच में, एक दो ट्रेड, बट मैं इमीडिएटली निकल गया उसमें से, बिकॉज देर इज अ नो पॉइंट होल्डिंग फॉर अ लार्जर गेन। 30-40% से बुल मार्केट में मिल रहे थे, वैसे अब नहीं मिलेंगे। यू हैव टू कट डाउन योर टारगेट्स ऑल्सो और पोजिशन साइजिंग ऑल्सो। दिस इज नॉट अ बुल मार्केट फॉर इन शॉर्ट टर्म। Regarding investors, this video might run for a little bit longer time, थोड़ा दूर तक चलेगा ये। बट थोड़ा साइकोलॉजी समझो मार्केट की क्या हो रहा है। इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ ये सब चीज़ों को, विल मेक इट क्लीन अगेन। ओके। तो ऑन डेली बेसिस निफ्टी का जो मूविंग एवरेज है 200 डे के नीचे ही निफ्टी चल रहा है अभी क्लोजिंग प्राइस। और जो शॉर्ट टर्म उसके एवरेजेस है वो भी इसके नीचे है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ बेरिशनेस। सो फॉर स्विंग ट्रेड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेन। एंड फॉर इन्वेस्टर दिस इज अ रियली गुड टाइम, ओके, दिस इज अ रियली गुड टाइम टू एंटर इनटू अ इन्वेस्टमेंट मोड। थोड़ा 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 करके एसआईपी आप चालू कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट कुछ वीक्स पहले बोला था कि मैंने खुद मिड कैप इंडेक्स में चालू किया है इन्वेस्टिंग, विच वाज रियली गुड डिसीजन। काफ़ी अच्छे लेवल पे इनिशियल बाइंग तो हो गई है। अब देखते हैं कैसे उसमें अगर और फॉल आता है तो वो चलते रहेगा मंथली बेसिस पे। बैंक निफ्टी की देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी।
अब हम सेक्टर देखेंगे जो निफ्टी के साथ में रिलेटिव, यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ डाल के रखा हूँ यहाँ पे कि कौन से सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उस हिसाब से हमें प्लानिंग की जरूरत होती है आगे जाके। सो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग, जो कि इतने टाइम से 23 से लेके फिर 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको वॉच देना पड़ेगा। जैसे कोटक बैंक मैंने देखा कि अच्छा जा रहा है, बहुत काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन में था, वो ब्रेकआउट की कगार पे है। देन ऑटो इज अंडर परफॉर्मिंग टू द निफ्टी। तो यू कैन सी डेफिनेटली कि ये फॉल आ ही जा रहा है। तो जब तक अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं करता ये इंडेक्स, तब तक आई विल नॉट थिंक अबाउट एंटरिंग इनटू ऑटो स्टॉक्स, एनी काइंड ऑफ ऑटो स्टॉक्स। आईटी ने अभी लैग करना चालू कर दिया है। तो इफ यू हैव स्टक इन द आईटी स्टॉक्स, सो बेटर स्टे अवे फॉर स्विंग ट्रेड्स। FMCG also underperforming the Nifty, एंड यू कैन सी इन द चार्ट ऑल्सो। जैसे मैंने बोला था कि ये आएगा उसके लॉन्ग टर्म कोविड के टाइम फ्रेम के, यहाँ पे तो आ ही गया वो। हम लोग ने डिस्कस किया था जब यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा था 55,000 के आसपास। उसके बाद अच्छा खासा फॉल आके यहाँ से रिकवरी हुई है उसके। सो FMCG इज अंडर परफॉर्मिंग, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक ठाक लग सकता है, बट नॉट फॉर स्विंग ट्रेड डेफिनेटली। लेट्स सी द मेटल इज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म। अच्छी खासी एक रिकवरी दी थी एंड विच वाज एक्सपेक्टेड। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो जोन था इसके ऊपर क्लोजिंग आने की जरूरत है, वो आ गई। और कुछ टाइम स्पेंड करके और उसमें अच्छे खासे अप मूव देखने मिले। तो ओवरऑल 7% के गेन एक इजिली मिले मेटल्स में। मिड कैप, एक इसका जो मेजर सपोर्ट था, जो मेक और ब्रेक लेवल था कि यहाँ से अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नीचे चला जाएगा। तो दो मिड कैप इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। थोड़ा सा इसने एक रेजिस्टेंस दिखा है यहाँ से, गिरा नहीं है। 8% की एक शार्प रिकवरी हमें देखने मिली, बट अगेन यू कांट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ पुल बैक्स इन द बियर मार्केट। ये डेफिनेटली लोअर हाई लो स्ट्रक्चर पे ही अभी भी चल रहा है। जब तक ये इसका अर्लियर स्विंग हाई नहीं निकलता, उसके ऊपर नहीं टाइम स्पेंड करता, प्लस 200 डे के ऊपर सारे मूविंग एवरेज नहीं जाते, ये करंट मार्केट प्राइस 200 के ऊपर नहीं जाती, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज अ सेल ऑन राइस। एंड पुल बैक्स तो काफी शार्प आते हैं, 10-10 टक्के के भी पुल बैक्स आ सकते हैं इन दैट केस इन द स्टॉक्स। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मूविंग एवरेज सारे अलाइन रखो वो चीज में, एंड देन यू शुड हैव पुट योर मनी। फार्मा थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन में है, एक यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके उसने एक अपसाइड दिखाई, बट अगेन इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। जब तक ये चेंज नहीं होता हम नहीं देख सकते। फार्मा के लिए एक स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा, जो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं क्विकली उसको डिस्कस कर लेता हूँ। And this all discussion is all about study purpose. If you want to take your trades, kindly discuss with your financial advisor. Alembic Pharma. अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, लुक एट दिस। ये वॉल्यूम काफी बढ़ा है लास्ट कुछ दिनों में। सो एक कुछ एक्यूमुलेशन जैसा चल रहा है अलेम्बिक फार्मा में, डेफिनेटली समथिंग इज हैपनिंग। एक बड़ी स्केल पे ये चल रहा है चीजों। थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, मंथली में डाल देते चाहिए तो। लुक एट दिस, नाउ थिंग्स आर रियली सॉर्टेड। अलिम्पिक फार्मा की 783 की जो लेवल थी, दैट वाज लॉन्ग वे बैक इन 2015। ये काफी दिनों में इसका एक हाई बना था। इसके बाद में काफी महीनों तक ये चीजें चली साइडवेज, और अभी एक बाउंस बैक आया है वही लेवल से एग्जैक्टली। सो मंथली लेवल पे भी ये काफी बढ़िया है ये चीजें। सो आई फील कि अलेम्बिक अच्छा लग रहा है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाएगा तो ऑल टाइम हाई से ये और 40% यहाँ से गेन एक्सपेक्टेड है। अगर ये लेवल क्रॉस होती है ऑल टाइम हाई वाली, तो यू हैव टू टेक सिंपली दिस रेंज। यहाँ से ये जो रेंज थी, ये रेंज पकड़नी है और आपको ऑल टाइम हाई पे रखनी है। सो फॉर अलेम्बिक लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे स्टॉक्स को,
लेने के लिए, उनके लिए ये ऑलमोस्ट 126% के टारगेट यहाँ से टेक्निकली नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं ये रेंज में। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम थे 2015 से लेकर 2020 तक। 20 के बाद जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉक में, और जब करेक्शन आ रहा है तो बहुत बहुत शार्प डीप आ रहा है वॉल्यूम्स में। मीन्स ये प्योर एक्यूमुलेशन इंडिकेशन है। और जब स्टॉक बढ़ रहा है मंथली में भी, तो काफी अच्छे राइज आ रहे हैं वॉल्यूम में। अगेन यू कैन सी यहाँ पे जो कुछ महीनों से ये स्टॉक गिर रहा है मार्केट के साथ, बट देर इज अ लैक ऑफ एनी वॉल्यूम, एनी सेलिंग वॉल्यूम। और अब जब मार्केट में फिर से थोड़ा सा पुल बैक शार्प रिकवरी आ रही है, तो यू कैन सी द वॉल्यूम। ठीक है, you can see on the weekly basis also. So those who want to invest for a little bit long term, Alembic Pharma is a good choice. Then there is a another Alembic Limited also. Alembic, that stock also looking good. ये जो राउंडिंग बॉटम बना था उसका एक अभी पुल बैक आ रहा है यहाँ से। सो आई फील कि ये स्टॉक, यहाँ से एक हम राउंडिंग बॉटम करते हैं, और अनदर राउंडिंग बॉटम यहाँ से फॉल हो रहा है। अगर ये जो लो है, अगर ये सेव होता है यहाँ से, तो ये अगेन ये कंप्लीट करेगा उसका जो टेक्निकल टारगेट है बॉटमिंग आउट के। ये अगेन कंप्लीट कर सकता है इसे। सो यू कैन सी द डबल बॉटम फॉर्मिंग। और ये अगेन इसका जो टारगेट है, वी हैव टू पुट हियर, जो निकल के आता है 250 रुपीज, एंड फ्रॉम करंट लेवल इट्स ऑलमोस्ट 150% रिटर्न। इवन इफ यू टेक 5 5 years, then also 25% का CAGR is not bad at all. So these two stocks are really good if you want to invest a small quantity for a larger time frame. Definitely you can think about these both stock. So let's get back to sectors now. ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस, काइंडली कॉन्टेक्ट मी। आई हैव माय पेड सर्विस आल्सो, वेयर आई गिव द स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स एंड क्लाइंट्स आर रियली हैप्पी विथ इट। जैसे मार्केट गिर रहा था, वी आर ऑलरेडी मेक अवर सेल्फ फ्री इन द कैश। स्टॉप लॉस टाइमली हिट हो गए एंड हमारी क्लैश काफ़ी क्लियर हुई टाइम पे। और अभी जब मार्केट रिबाउंस दे रहा है तो हम कुछ बाय कर पा रहे हैं। PSU बैंक्स का जो था वीकली बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड था कि एक पुल बैक होगा, तो वैसे ही चांसेस है कि ये थोड़ा सा रीटेस्टिंग के लिए आए फिर से। अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट, PSU बैंक का भी। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो पिवटल पॉइंट्स थे काफ़ी अच्छे हैं। लेट्स गो टू मंथली बेसिस। सो ये जो ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट आया था, ये जो अच्छा एक जोन था, वहां से हमें एक पुल बैक देखने मिला है। एंड दिस ग्रीन लाइन इज जस्ट मूविंग एवरेज ऑन मंथली बेसिस। 21 day मूविंग एवरेज ऑन अ मंथली बेसिस। वी कैन डू द 10 ऑल्सो। 10 ऑल्सो वर्किंग फाइन। अगर मंथली पे आप 10 कैलकुलेट करते हो, वेट आई विल लिटिल बिट, लेट्स मेक दिस ब्लैक, लेट्स मेक दिस EMA। ओके, सो अगर मंथली बेसिस पे अगर कुछ चीज 10 के ऊपर जाती है, तो कुछ महीने के लिए वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। और अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो कुछ महीनों के लिए वो ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है। सो 10 ऑन मंथली बेसिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर वेयर मार्केट इज राइट नाउ। आपको देखना हो तो सबसे पहले जो मंथली बेसिस के क्लोज नीचे आया, तो वो आया December 24 में। अगर वो लेवल पे आप निकल जाते यहाँ से एक स्टॉप लॉस लेके आपका, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता और आपका काफ़ी एफर्ट्स बच जाते हैं उसमें। तो दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेटर। निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे दिसंबर जैन में ही क्लोज नीचे आ गया निफ्टी का, उसके बाद यू कैन सी द फॉल। और अब देखा जाएगा तो ये जस्ट रीटेस्टिंग है उस चीज़ का। सो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं आता तो रीटेस्ट करके फिर से भी नीचे चला जा सकता है। सो 10 डे मूविंग एवरेज ऑन मंथली बेसिस यू हैव टू बी केरी केयरफुल कि जब तक वो क्लोज नहीं होता मंथली बेसिस पे, तब तक आपको बिलीव नहीं करना कि ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। पास का एग्जांपल भी देख लो। क्लोजिंग में कोविड के टाइम पे क्लोज आया था, कोविड से पहले ही मार्केट ने इंडिकेशन दिए थे कि ये नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी एक इंडिकेशन आए थे, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग नीचे आई थी। सो कोविड से पहले ही समहाउ मार्केट में सेंस कर लिया था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ साइडवेज चीज़ें हो रही थी।
सो मंथली बेसिस पे भी आपको ये मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है टू गेस कि कहाँ मार्केट जा रहा है, कौन से सेक्टर क्या कर रहे हैं। और ये स्टॉक स्पेसिफिक भी ये काम करता है। लेट्स चेक द डॉलर इंडेक्स ऑल्सो। डॉलर इंडेक्स ने भी ये चीज अभी दिखाई है कि वो 10 के नीचे चला गया है क्लोजिंग। अभी अगर क्लोजिंग टिकता है तो इट्स गुड फॉर इंडियन मार्केट ऑब्वियसली। ये जब बढ़ रहा था तो इंडियन मार्केट में फॉल आ रहा था। देन देर इज अ गोल्ड, यू कैन सी गोल्ड इज टेकिंग really beautiful support on a 10 EMA, right? Then silver is also there. So there are many topics I can discuss about various tricks in the market कि कैसे होता है क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए तो एक अपसाइड मुझे दिख रही है। मंथली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इवन इफ इन द गोल्ड ऑल्सो, यू नो, हर मंथली क्लोजिंग ऊपर 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 ही आ रही है। बहुत ही अच्छा ट्रेंड में चल रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट ड्रैग विद दिस काइंड ऑफ रैली जो पुल बैक की आती है। आपको बहुत सारे मिलेंगे जो बोलेंगे कि देखा मैंने लो प्रेडिक्ट किया था यहाँ से। दोज आर दी प्लेयर्स हु वांट सम एड्रेनल रश कि मैं बॉटम पकड़ूंगा और उसको ऊपर जाके बेचूंगा। बट आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू बी वेट कि कैसे करना है क्या करना है। बेटर है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा रिस्क लिया जाए रादर देन इनटू डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही है तो स्टिक टू इंडेक्स फंड स्ट्रिक्टली। डोंट टेक स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क नाउ। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर नॉट फुल टाइम ट्रेडर, don't take risk right now. So that's it for this week. We will meet in again in this next week for the next market update. So thank you for watching. Have a nice week ahead.